students. So I hope you all are fine and you all are enjoying my lectures. So you can all see that I've tried to put in some interesting things and I've tried to create something which might take away that boredom, that boring feeling which you are getting in the lectures. And I know lectures can become boring, but because my channel's name is Unconventional, so I've just tried to shift away from the traditional teaching method and try to put something which is little interesting and might help you all to focus more. Okay, so let us come back to our chapter. So we have completed around half of the chapter. So let us proceed. I think we were on page number 26. Okay, page number 26, it's here on the screen as well. Alright, let us begin now. So in the last class, what did we discuss? That the author William Douglas has been thrown into the swimming pool. So now please understand one thing. As I'm teaching, we have to focus on the main incident, the misadventure which has happened. And the misadventure here which has happened is the author going into the swimming pool, not exactly going into, he had been thrown into the swimming pool, and his struggle inside the swimming pool, his struggle with the fear of water and how he finally is able to overcome it, that we are going to study in this chapter. Alright, so in the last class we discussed this, that the author William Douglas was thrown by an 18-year-old boy into the swimming pool. So now when he was thrown, he did not have any idea that he was going into the swimming pool. He had some idea कि अच्छा हम अभी स्विमिंग करने जाएंगे, पर उसको ये नहीं पता था कि सडनली उसको कोई फेंक देगा पानी के अंदर. So when he went inside the pool, he just landed in that sitting position as he was sitting, and in that journey towards the bottom of the pool, he planned that as soon as I'll hit the bottom, हम जैसे bottom को touch करेंगे अपने पैर से एक जोर से मारेंगे, and then like a cork, like a spring, हम बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे और surface पे float करने लगेंगे. But what happens when he is thrown into the swimming pool? वो बहुत धीरे धीरे नीचे जाता है. फिर भी जब वो नीचे पहुंचता है और वो किक करने का कोशिश करता है बॉटम को, उसके एक्सपेक्टेशन के कंप्लीट ऑपोजिट, वो स्पीड में ऊपर नहीं आ रहा है बल्कि बहुत धीरे धीरे ऊपर आता है. एंड बिकॉज ही कम्स अप वेरी स्लोली, ही इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट हिज प्लान. वो अपना प्लान में कामयाब नहीं होता है. वो स्ट्रगल करने लगता है पानी से निकलने के बाहर, एंड उसको आसपास कुछ नहीं दिखता है सिवाय पानी, और वो गंदा येलो पानी. ऑलराइट, नाउ ही इज ट्राइंग टू होल्ड समथिंग कि कुछ भी हाथ लग जाए जिसको हम पकड़ के स्विमिंग पूल के बाहर निकल सके, पर उसको कुछ नहीं मिलता. वो चिल्लाने की कोशिश करता है, वो उसका कोई आवाज नहीं जाता है बाहर, बिकॉज if you are science student until 10th you have studied that sound cannot transfer in the water medium. Now what happens, फिर भी जब वो नीचे जाता है तो हम लोग डिस्कस कर लिए क्या क्या हुआ उसके साथ. लैंडिंग पोजीशन में जाता है, वो सोचता है ऐसा ऐसा प्लान करता है, लेकिन उसका लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट एंड ऑल दोस थिंग्स जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए. एंड जब वो ऊपर आता है तो वो किस स्पीड में आ रहा है, एंड व्हाट हैपेंस, ओनली हिज आईज एंड हिज माउथ कम्स आउट ऑफ वाटर एंड हिज माउथ इज स्टिल इनसाइड द वाटर. तो तुम लोग पिक्चर इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ पानी यहां तक वो बाहर है, मुंह अभी भी अंदर है. यहां तक डिस्कस किए. नाउ लुक हियर, I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. The last line underline, I'll discuss it. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. Just underline that. Alright. Now let us understand. ये क्या बोल रहा है, जब वो पहली बार नीचे जाता है, एंड देन वो ऑब्वियसली पहली बार अगर नीचे जाएगा तो कौन सी बार ऊपर आएगा, पहली बार. तो वो जब पहली बार ऊपर आ रहा है, वो अपना मतलब वो एक टाइम वो नीचे गया एंड ऊपर आया. दिस वाज द फर्स्ट टाइम. अब वो
surface पे he flailed at the surface, as in he was just floating for a bit. हो सकता है 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए वहां पर वो है, एंड ही स्ट्रगलिंग, वो उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि उसका मुंह अभी भी पानी के अंदर है. नाउ यू अंडरस्टैंड, तुम्हारे नाक और तुम्हारे मुंह से कितना डिस्टेंस है, वेरी लिटिल डिस्टेंस इज देयर. Now if you are inside the water and somehow you will be able to get your nose outside the water but the mouth is still inside, वो पानी भी काइंड ऑफ वेव्स नहीं बोलेंगे, पर वो जैसे फ्लक्चुएट करता है वैसे ही पानी का लेवल भी फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे. सो बहुत बार क्या हो रहा होगा, नाक में पानी जा रहा होगा, फिर वो नीचे थोड़ा की तरफ थोड़ा सा जा रहा होगा. सो इन दिस प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, ही स्वॉलोड, ऑब्वियसली वो पानी मुंह क्योंकि पानी के अंदर है, ही स्वॉलो सम वाटर एंड चोक्ड, बिकॉज वो प्लान्ड वे में नहीं चल रहा है. अंडरस्टैंड, हम लोग को यहाँ पर स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है जितना भी चीज ऑथर के साथ हुआ है. वहां पर मान लो सिर्फ वो 5 मिनट का इंसिडेंट होगा या 7 मिनट का या 10 मिनट का इंसिडेंट होगा, बट हम लोग को पूरा इलैबोरेट करके पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया जा रहा है. सो एबल टू अंडरस्टैंड आई गेस. ऑल राइट, सो यहाँ पर उसका मुंह पानी के नीचे होता है. ही swallows some water, he is choking. Choked means underline and write, suffocate, unable to breathe, choke करना, सांस रुक जाना. ओके, I tried to bring my legs up, क्योंकि उसका मुंह पानी के भले अंदर था, नाक और आंख बाहर था, तो कुछ तो सक्सेस मिला स्विमिंग पूल से बाहर आने का. तो वो सोचा कि अच्छा चलो हम किस तरह अपना पैर को ऊपर टानते हैं और हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. What happens? He tried to bring his legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. Dead weights, अगर कोई तुम भारी चीज रस्सी में बांध के छोड़ दोगे तो कैसा होता है, वो कोई चीज की तरफ बांधोगे कोई चीज के ऊपर एंड तुम छोड़ दोगे तो वो डेड वेट, जो वो वेट है वो नीचे टानता है उस सामान को. तो ऐसे ही फील हो रहा था कि उसका पैर बिल्कुल सेंसलेस हो गया था, उसका पैर में कोई फीलिंग नहीं था, उसका पैर पैरालाइज फील कर रहा था विदाउट एनी काइंड ऑफ सेंसेस. उसका पैर ऐसा लग रहा था कि डेड हो चुका है. A great force was pulling me under. Now you all know that water has this invisible force, okay, which if anybody has swum, and if anybody knows what swimming is actually how it feels like, you know that when you go inside the water, if you don't know how to swim, it is just like कि कोई तुमको नीचे टान रहा है. There is this invisible force of water which pulls you down. I screamed but only water heard me, obviously because आवाज बाहर जा नहीं पा रहा है, उसका मुंह अभी भी पानी के अंदर है. I have already made you underline, I have started on the long journey back to the bottom of the pool. As in, ये कौन सी बार अब नीचे जा रहा है? Just relax and understand. हम लोग लास्ट क्लास में जब उसको फेंका गया पानी के अंदर तो वो कौन सी बार नीचे गया? पहली बार. और वो पहली बार ऊपर भी आने की कोशिश किया. अब वो कौन सी बार नीचे जा रहा है? यस, सेकेंड टाइम. ही इज गोइंग डाउन फॉर द सेकेंड टाइम, क्योंकि उसका पहला अटेम्प्ट बाहर आने का फेल कर गया है. सो क्या लिखा है? आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. लॉन्ग जर्नी क्यों बोल रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली इसको वहां पर उसका सब कुछ रुक गया है. ही इज अनेबल टू ब्रीथ, ही इज अनेबल टू think anything properly. So for him everything has stopped. That's why for him everything has become very long, very big. So he's going again to the bottom of the pool. यहां तक सबको समझ में आया? Again and again I'm telling you, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है समझने में, just keep on listening. By the end of this lecture video हम क्या समझाएं वो हम फिर से ब्रश अप करते हैं at the end of the video, और वो तुम लोग को ओवरऑल समझ में आ जाएगा. तो जब बिल्डिंग बनता है और ईंट रखाता है तो बहुत बार लोग को बिल्डिंग का पिक्चर समझ में नहीं आता है. दे जस्ट से ओ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है. बट व्हेन द बिल्डिंग इज रेडी once and for all, everybody knows how it looks. So let me complete the video. By the end of the video तुम लोग सबको समझ में आ जाएगा. Alright? Okay. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights as an irresistible force. Okay, let us just keep discussing and then we'll move forward. I struck at water as I went down. So strike का past tense को struck बोलते हैं. It's here on the screen as well. Strike का past tense को struck बोलते हैं. तो strike करना as in
किसी को जोर से मारना, तो वो पैर से कोशिश कर रहा है या फिर हाथ से, इज जस्ट स्ट्राइकिंग एट द वाटर, इज जस्ट बीटिंग द वाटर एंड एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, ही इज ट्राई टू स्पेंड हिज स्ट्रेंथ, कि वो जितना हो सके उसका स्ट्रेंथ जो बचा हुआ है उसके अंदर उसको वो यूज कर रहा है. एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स, ऐसा हम अपना बचा कुचा स्ट्रेंथ से लड़ रहे थे, एज इफ एक नाइटमेयर में, नाइटमेयर अंडरलाइन एंड राइट, बैड ड्रीम, एक बुरे सपने में एक इंसान एक अनदेखा अनसुना ताकत से लड़ता है. बिकॉज ड्रीम में व्हाट हैपेंस, इट इज नॉट रियली इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, व्हाटएवर हॉरर ड्रीम यू हैड और स्कैरी ड्रीम यू हैड, वो तुम्हारे सामने सीरियसली नहीं रहता है, बट वो ना तुमको दिखता है ना तुमको सुनाई देता है, बस तुम ड्रीम में सबकॉन्शियसली उससे लड़ते रहते हो. यहां पर वही बोल रहा है कि हम पानी में ऐसा लड़ रहे थे जैसे एक इंसान अपने बुरे सपने में उस नेगेटिव फोर्स से लड़ता है. इररेजिस्टिबल. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, रेजिस्टिबल मतलब जिसको तुम रेजिस्ट कर सकते हो. साइंस स्टूडेंट्स या तुम लोग सब कोई 10 तक पढ़े हो रेजिस्टेंस इन फिजिक्स, जहां तुम रोक सकते हो. इररेजिस्टिबल जो रोका नहीं जा सकता है. तो इररेजिस्टिबल मीन्स विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड. तो ऐसा फोर्स जिसको रोका नहीं जा सकता है, उससे एक इंसान अपने बुरे सपने में लड़ता है. वैसे ही लड़ाई हम यहाँ पर वाटर के अंदर कर रहे थे, जहां हम कोशिश कर रहे थे बस हाथ पैर मारने का, बट नथिंग वाज हैपनिंग. ठीक है, यहां तक समझ, ऑलराइट. ओके, सो यहां तक समझ में आया. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. So he's saying that he had lost all his breath. जितना भी, obviously because when he was thrown into the water he was not prepared. उसको अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है. तो जो भी बचा कुछ उसके पास स्ट्रेंथ था उससे वो लड़ रहा था. Now he had lost all his breath. उसको सांस नहीं आ रहा था, because अंडरस्टैंड, जब वो पहली बार ऊपर आने की कोशिश किया और उसका नाक और आंख सिर्फ पानी के बाहर था, उसका मुंह पानी के अंदर था. एंड आई टोल्ड यू कि ऐसा एक स्ट्रेट लाइन नहीं था. पानी वॉज द लेवल ऑफ द वाटर वॉज फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज ऑफ विच कभी उसके नाक में पानी जा रहा होगा, कभी वो खुद नीचे की तरफ जाने लगा होगा. ऑलराइट, सो एट दैट मोमेंट ही कुड नॉट हैव ब्रीथ्ड प्रॉपरली, वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पाया होगा. माई लंग्स एक्ड, यू ऑल नो ACHE मीन्स पेन. हार्ट एक, स्टमक एक, हेड एक, हेडेक नहीं बोलते हैं, हेड एक होता है तो उसको साथ में सब हेडेक बोलता है. एक मीन्स पेन. ऑलराइट, एक्ड पास्ट टेंस ऑफ एक. माई हेड थ्रॉब्ड. So many of you might have felt this experience when like your head is bursting with pain and you feel a kind of beating जो continuously हो रहा है, इसलिए हम लोग थ्रॉब बोलते हैं. हार्ट थ्रॉब सुने होंगे, एक एक्टर है जो बहुत हार्ट थ्रॉब लग रहा है. Why we say that? Because when any girl look at that actor, what happens? Her heart starts beating fast. तो हार्ट जब बीट करता है तो उसको हार्ट थ्रॉब बोलते हैं. Similarly यहाँ पर हेड थ्रॉब as in his head has stopped thinking. It's in so much pain and it's not even, we cannot even describe in words. वो बिल्कुल it's beating, his head is beating. Okay, he's hearing that beat in his head. I was getting dizzy, obviously because जो कुछ भी हो रहा था वो इतने जल्दी में हो रहा था that he couldn't get any time to think and all, and he was getting dizzy as in you all know, उसको नींद नहीं बोल सकते, but he was getting unconscious. Alright, वो अपने होश से हट रहा था. But I remember the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. तो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी उसके जहन में बसा हुआ था और वो अभी भी वही सोच रहा था कि जो भी मेरे पास स्ट्रेंथ बचा कुचा है, जो हम बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, हम फिर से वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और फिर हम बॉटम को हिट करेंगे और लाइक अ कॉर्क आई विल कम अप टू द सरफेस. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, ये कौन सी बार नीचे जा रहा है? सेकेंड टाइम. फर्स्ट बार नीचे गया, फर्स्ट बार ऊपर आया, हम लोग पढ़ लिए. ये दूसरी बार नीचे जा रहा है. दूसरी बार में क्या क्या हो रहा है इसके साथ? इसका लंग्स एक कर रहा है, हेड इज थ्रॉबिंग, ही इज फीलिंग डिजी, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ, ही इज एज इफ वो एक अनदेखा फोर्स को लड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो सेम स्ट्रैटेजी बनाता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड,
हम जो समरी देंगे उसमें हम बहुत प्रॉपरली दिए हुए फर्स्ट जो इसके साथ जो ये कितने बार स्विमिंग पूल के नीचे जाता है और कितनी बार ऊपर आता है इसका डिस्क्रिप्शन. एंड एज आई एम टीचिंग द मेन पॉइंट्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द स्क्रीन सो दैट प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, प्लीज डोंट बी वरीड बिकॉज आई एम हियर फॉर यू ऑल. सो जस्ट डोंट थिंक कि मैम ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा है. सब हो जाएगा. गिव इट सम टाइम because we are also learning, you are also learning, so it will happen. Okay, so ये दूसरी बार नीचे जा रहा है. इसके साथ क्या क्या हो रहा है पॉइंट्स यहाँ स्क्रीन पे हम देते जाएंगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा. I would spring like from okay to the bottom of the pool and like a cork I'll come up. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. वही बोल रहा है यहाँ पर ऑथर कि हम फिर से पानी में ऐसे ही फ्लैट ऐसे लेट जाएंगे और हम अपने आर्म से जोर जोर से मारने लगेंगे पानी को. एंड हम अपने पैर से थ्रैश इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बीटिंग, तो हम अपने पैर से भी जोर जोर से मारने लगेंगे. एंड उससे क्या होगा, आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल. जैसे हम नीचे जा रहे हैं वो बोला हम जोर से हिट करेंगे, फिर से कॉर्ड की तरह ऊपर आएंगे और फिर हम सीधा छोड़ देंगे अपने आप को. तो हम फ्लैट लेट जाएंगे और पैर हाथ मारते हुए हम एज ऑफ द पूल की तरफ बढ़ जाएंगे. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that no one can see through. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हम ये सब प्लान बना ही रहे थे कि हम नीचे जाएंगे और हम ऐसा करेंगे और हम फिर वापस ऊपर आएंगे. एंड आई रियलाइज कि हम नीचे जा ही रहे तो जा ही रहे. नाउ अगेन आई टोल्ड यू माइट बी वो एक बार में नीचे पहुंचा होगा, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस उसको फील हो रहा था कि वो नीचे पहुंच ही नहीं रहा है. इट इज जस्ट टेकिंग सो लॉन्ग फॉर हिम टू रीच बिकॉज ये हम लोग के मेंटली भी चलते रहता है. व्हेन समथिंग बैड हैपेंस वो हम लोग के भले वो दिखने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इट हैपेंस फॉर अस इन आवर हेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पर इसको ऐसा फील हो रहा है कि वो नीचे जा ही रहा है एंडलेसली. कोई नीचे बॉटम ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, वो बिना रुके जाए जा रहा है. एंड जब वो आंख खोलता है वो उसको आसपास कुछ नहीं दिखता है सिवाय डार्क वाटर जिसमें एक येलो डर्टी कलर था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास. Now those who have already been to a swimming pool or a river, they can easily understand. And there's one fun fact which I'll tell you all by the end of the chapter, so you have to wait for the lecture. And I'll be discussing my experience like William Douglas, what happened to me when I had this similar experience, and it is the truth. So stay tuned and you'll get to know that what happened with me also. All right. And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. It was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. So please students understand this. जब वो पहली बार नीचे गया और पहली बार ऊपर आया उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ लिए. अब ये दूसरी बार नीचे जा रहा है तो इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है, हम ये नहीं कह रहे एग्जाम में अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टू डिस्कस द मिस एडवेंचर, तुम डॉट और पॉइंट बाई पॉइंट सेम लिखोगे, पर एटलीस्ट तुम 10 चीज याद रखोगे तो उसमें से 5 लिख पाओगे. तो ध्यान में सब रखना है कि उसके साथ क्या होता है जब वो दोबारा नीचे जा रहा है, लेकिन माइट भी तुम उसमें से कुछ ही लिख पाओ एग्जाम में. ऑलराइट, यहां पर क्या बोल रहा है, एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी. ऐसा लगा, शियर मीन्स कंप्लीट, बोल सकते हो दिस इज शियर रियलिटी, कंप्लीट रियलिटी. ठीक है, शियर कंप्लीट, स्टार्क बहुत गाढ़ा, बहुत डीप. ओके, शियर कंप्लीट, स्टार्क, डार्क. टेरर सीज्ड मी. टेरर यू ऑल नो दैट फियर, टेररिस्ट, पर्सन हु ब्रिंग्स टेरर इन अ हार्ट. वो जो डर लाता है वो होता है टेररिस्ट. तो टेरर, डर. टेरर सीज्ड मी, कॉट मी, हेल्ड मी. हमको पकड़ लिया, हमको जकड़ लिया. सीज्ड, इट्स ऑल देयर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. ऐसा डर जिसका कोई समझ ही नहीं हो, ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल तुमको कॉकरोच से डर लग रहा है या तुमको
हाइट से डर लग रहा है, वो डर तुमको समझ में आता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर उसको एक ऐसा डर लग रहा था जो कोई समझ नहीं सकता है, जो कोई एक्सपीरियंस जब तक नहीं किया होगा वो उसको बिल्कुल नहीं समझ सकेगा। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो तुम्हारे जहन से लेके तुम्हारे टिप ऑफ द टो तक ऐसा भर जाएगा कि तुमको पता तक नहीं चलेगा। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वही जो अभी हम बोले। सो अब तुम लोग बोलोगे मैम हम लोग भी नहीं समझ सकते क्योंकि हम लोग को तो ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम टीचिंग यू ऑल सो दैट तुम लोग को एक्सपीरियंस हो। हम तुम लोग के लिए मूवी आई डोंट थिंक हम ला सकते हैं। सो आई ट्राई, जिस तरह से हम एक्सप्लेन करें यू विल बी एबल टू इमेजिन इट इन योर हेड एंड एक्सपीरियंस व्हाट विलियम डगलस इज गोइंग थ्रू। I was paralyzed under water, stiff, rigid with fear. Stiff, कड़ा एकदम, rigid also बोल सकते हो कि बिना हिले डुले, और एकदम fear के साथ वो बोल सकते हो कि he was very tight at that moment. He was not moving at all. He stopped for a second. Even the screams in my throat were frozen because वो इस कदर डर चुका था, इस कदर टेरर उसके हार्ट को जकड़ लिया था कि उसके आवाज से, उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रहा था, स्क्रीम तक नहीं हुआ। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। सो ना वो सोच पा रहा है, ना वो समझ पा रहा है, उसको डर पूरा घर कर चुका है, वो चीख नहीं पा रहा है क्योंकि उसका आवाज निकल नहीं सकता है। सो सिर्फ जो हार्ट और हेड में जो बीटिंग चल रहा था, जो हार्ट बीट कर रहा था एंड उसको सुनाई दे रहा था, और हेड में जो यू कैन से जो हैमर से मारने वाला जो पेन होता है वो फील हो रहा था, उससे ऑथर को पता चल रहा था दैट ही इज अलाइव। बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ऐसा मोमेंट होता है व्हेन यू आर नियर डेथ एक्सपीरियंस है, जहां तुमको पता ही नहीं तुम्हारा लाइफ कब एंड हो सकता है। एट दैट मोमेंट यू लूज ऑल योर माइंड एंड तुमको कोई चीज समझ में नहीं आता है। सो वहां पर उसका सिर्फ हार्ट बीट और हेड जो थ्रॉप कर रहा था, बीट कर रहा था, उसको ये समझ में आ रहा था दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। ऑलराइट, okay, and then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me, my toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. So understand, ये दूसरी बार नीचे जा रहा है, ठीक है, एंड जब obviously we all discuss उसका क्या होता है, उसका हार्ट और उसका हेड बीट करने लगता है, उसका लंग्स एक करता है, उसको सांस नहीं आ रहा है, वो फिर भी प्लान करता है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उसको बिल्कुल इट्स गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, उसको कुछ एंड नहीं दिख रहा है, सारा रीजन खत्म हो जाता है, कोई वो टेरर का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, फिर उसको ऐसा फील होता है कि उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो चुका है, वो स्टिफ हो चुका है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, एंड सिर्फ उसके हेड और हार्ट में जो बीटिंग चल रहा है, जो बीट कर रहा है, वो सिर्फ बता सक रहा है उसको। यहाँ पर भी लिखा हुआ था दैट पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग, थ्रॉबिंग, बीटिंग एक ही मतलब है, ठीक है, पाउंडिंग, बीटिंग या थ्रॉबिंग एक ही मतलब है उसका, इट्स लाइक बीटिंग। ऑलराइट, नाउ ये सब सिर्फ उसको एहसास दे रहा है दैट ही इज अलाइव। देन इन द मिड्स ऑफ टेरर, मिड्स बीचों बीच, इन द मिड्स्ट ऑफ टेरर, बीचों बीच, टेरर के बीचों बीच, क्योंकि वो सब तरफ से जकड़ा हुआ है, वो सोच से, वो टेरर से, उसके बॉडी जैसा रिएक्ट कर रहा है, उसका माइंड जैसा हो रहा है, उन सब के बीचों बीच वो फिर याद करता है कि अच्छा हमको तो जंप करना है, और उसको उसी वक्त टाइल्स फील होता है नीचे अपने पैर के पास, एट द बॉटम ऑफ द पूल, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि बिल्कुल बाथटब की तरफ व्हाइट टाइल्स है, दिख रहा था। तो जैसे वो टाइल्स की तरफ पहुंचता है, वो पूरे ताकत के साथ, क्या लिखा हुआ है, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, उसको याद आता है कि उसको जंप करना चाहिए, एंड ही जंप्स विथ एवरीथिंग ही हैज। देखो क्या होता है, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। ऑब्वियसली ये दूसरी बार नीचे गया था, वो तुमको लगता है जब वो पहली बार में नहीं सका तो दूसरी बार में सकेगा? नहीं, दूसरी बार में और कोई फायदा नहीं होता है। द जंप मेक्स नो डिफरेंस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। वो बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश किया उस पानी में, बट उसको कुछ भी नहीं मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सा कोई इंसान टाइप का जो हमको पकड़ के रखा है, जो कि यहाँ पर क्या था, पानी।
Stark terror took even deeper hold on me. Stark deep जो डर था, टेरर था, वो और हमको जकड़ने लगा. Like a great charge of electricity. So just like electric shock लगता है, वैसे ही हमको ये पानी का शॉक लग गया था, जहां पर हम खुद सोच नहीं कर पा रहे थे. ये टेरर शॉक लगा था हमको. I shook and trembled with fright. He was so frightened. He was so afraid. कि वो कांपने लगा. Trembled, कांपना, शिवर करना. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. क्या लिखा है? अब उसको एहसास होता है कि ना उसका हाथ मूव कर रहा है, क्योंकि वो बहुत प्लान किया कि हम हाथ से मारेंगे, पैर से मारेंगे और हम बाहर तक निकलेंगे, पर ना उसका हाथ मूव कर रहा है, ना उसका पैर मूव कर रहा है. I tried to call for help. I tried to call mother, but nothing happened. ये क्या बोल रहा है? Obviously, ये एक इंसान का नेचर होता है कि जब वो बहुत डर में होता है या उसके साथ कुछ बहुत अजीब होता है, what happens? He or she calls out to his or her mother. ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है ऑथर कि हम अपनी माँ को याद किए, पर कुछ नहीं हुआ. हम आवाज लगाने की कोशिश किए, पर कुछ नहीं हुआ. And this is the what time he's which time this is the what I'll say ये what is the time he's coming up, which time, second time. पहला टाइम था और वो पहला टाइम ऊपर आता है जब उसका सिर्फ नाक और आंख पानी के बाहर आता है. ये सेकंड टाइम फिर नीचे जाता है, जो सब ये सब हादसा होता है और वो जंप करने की कोशिश करता है, और सेकंड टाइम फिर ऊपर आ रहा है, बट द जंप मेक्स नो डिफरेंस. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट. सडनली उसको लाइट दिखता है. वो बता रहा है कि वो जंप का कोई डिफरेंस नहीं हुआ, हमको नहीं लगा कि हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे, बट आई वॉज कमिंग आउट ऑफ वाटर. उसको लाइट दिखने लगा, वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आ रहा था. एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. नाउ अंडरस्टैंड, पहले वाले में उसका सिर्फ आंख और नाक पानी के बाहर था, मुंह अंदर था. यहां पर सिर्फ आंख बाहर है और नोज ऑलमोस्ट आउट है. ऑलमोस्ट आउट एज इन you realize that even if a tinge, even if a bit of your nose, the whole of your nose is inside water, पानी अंदर जाएगा and you won't be able to breathe. तुम चोक करोगे, तुम सांस नहीं ले पाओगे. यहाँ पर उसका नाक almost है. Again, almost is just like here. Now the water might be going in, might not be going in, but chances है कि पानी अंदर जा ही रहा होगा, सिर्फ आंख बाहर है. तो ये सेकेंड टाइम जो ये ऊपर आया है, इसमें सिर्फ इसका आंख बाहर है, नोज ऑलमोस्ट बाहर है. मतलब ऑलमोस्ट है, बट देन स्टिल कुछ एक पार्ट भी अंदर है, जिसकी वजह से ही इज अनएबल टू ब्रीथ. देन आई स्टार्टेड गोइंग डाउन द थर्ड टाइम. अंडरलाइन, पहला बार उसको फेंका गया था, वो था उसका फर्स्ट टाइम नीचे जाना, और वो जो जंप करने की कोशिश करता है और क्या होता है, जिसका सिर्फ नाक और आंख बाहर आता है, वो उसका फर्स्ट टाइम ऊपर आना था. सेकेंड टाइम फिर वो नीचे, जब उसको सब कुछ पैरालाइज फील होता है, वो टेरर आता है और वो जंप करने का प्लान करता है. सेकेंड टाइम जब ऊपर आता है तो क्या है बाहर, सिर्फ आंख एंड ऑलमोस्ट नोज. इससे पहले वो सांस ले पाता बाहर निकाल के अपना मुंह. ही अगेन स्टार्टेड गोइंग डाउन फॉर द थर्ड टाइम. नाउ थर्ड टाइम नीचे जा रहा है. अब इस बार वो ऑलमोस्ट गिव अप कर देगा, या वो फिर ट्राई करेगा ऊपर आने का, या क्या होगा. वील डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज अ वेरी mystery filled story and a very full of education story. Why? Because this story helps you all to understand that fear is not permanent and it can go away. So as I told that I'll discuss about my personal experience as soon as the chapter is over. I'll discuss that in the last video lecture of this chapter, and I'm sure you will be able to learn a lot from it. So okay, so till then, please keep reading, please keep attending the lectures. As for me, I'll try making it as more and more interesting, so that you don't feel bored and you will also be able to understand. Now one more thing, for those I saw comments which said that they are unable to write properly, or even if they are able to write, they don't know whether it is correct grammar or not. So for your benefit, I'm taking one step ahead, and I'll be giving the email ID of the channel in which my videos are being uploaded in the description box. Now it's your responsibility to tell all your friends, because
Many have not subscribed to my channel, and it's up to you. I won't say that you have to subscribe. If you like it, you subscribe. If you don't, it's up to you. But if you do that, what will happen? Just even if they don't, just send them the email ID and ask them to just visit my channel and see the email ID which is there. They can write the assignment and send it to me on my mail ID. I'll take some time and I'll try to check as many assignments as possible. All right. So I hope I am able to teach you all properly, and please keep studying and keep learning. Thank you.